وہ زیادہ ہے. تو ابھی انالیسز میں آج ہم پاور فلو سولوشن کے لیے تیسرا میتھڈ جو ہے اسٹڈی آپشن دونوں ڈفرینٹ اپروچز کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ آپشن کو ہی اپروکسیمیٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں کمپٹیشن کے مقابلے میں بہت آسان ہوگی، اور آپ جو ہے وہ فرسٹ کمپٹیشن ورس یہ جو اور جو سب سے جو لارج کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس میں کمپٹیشنل ایفیشنسی جو ہے وہ بہت آپ دیکھیں گے ابھی بہت امپروو ہو جائے گی. اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک کہ اس کی کنورٹ کہ آپ نے ڈیٹا کو سٹور بھی کرنا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ابھی ہم نے، اگر میں سلائیڈ پہ چلا جاؤں، لیٹس سپوز یہ ہماری لاسٹ آپشن ہے، تو اب ہم نے وی ہیو ٹو سالو دس سیٹ آف ایکویشنز، یہ ہم نے سالو کرنی تھی. اور اس میں سب سے جو کمپٹیشن تھی وہ کہاں پہ تھی؟ نمبر 1 ٹو کیلکولیٹ چینج ان دا P2. لیٹس سپوز P2 کو ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں بس نمبر 2 کو. تو چینج ان دا P2 کنٹرول کیلکولیٹ کرنے کے لیے یو شوڈ نو، اور دین یو ہیو ٹو کیلکولیٹ P2 کیلکولیٹڈ. یہ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک کمپٹیشن آ گئی نا. اب اس کے بعد یہ آپ کی دوسری کمپٹیشن، یو ہیو ٹو کیلکولیٹ ایوری ایلیمنٹ. ایگزامپل ہم نے ابھی، اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے پاس 4 بس سسٹم کی، میں نے آپ کو جسٹ ایک پرانی ایگزامپل تھی میرے پاس پڑھی، میں نے صرف آپ کو میٹریسز سمجھانے کے لیے ویکٹرز وہ اس کو انکلوڈ کیا تھا. اگر 4 بس سسٹم ہو تو دین اور ساری PQ بسز ہوں، دین وی ول ہیو 3 PQ بسز. تو 1 جو ہے وہ آپ کی سلیک بس ہو جائے گی. آفٹر دیٹ with 3 PQ buses every bus will have 2 equations, or so you will have 6. تو this میٹرکس جو ہے یہ آپ کا، یہ 6x6 کا آپ کا میٹرکس جیکوبین بنے گا. You have to 6x6 means 36 انٹریز جو ہیں وہ آپ نے ڈیریویٹو لے کے اور پھر ان کا کیلکولیشن کرنی ہے. یہ ایک سٹوری آپ کو چاہیے کمپیوٹیشن. تو چینج ان دا ویریبل جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس وقت لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جائے گا، اور دین آپ نے جیکوبین کا انورس لینا والا جو فنکشن ہے وہ اس کے ویکٹر کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو دین یو ول کیلکولیٹ دا چینج ان دا ڈیلٹا اور وی میگنیٹیوڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے کمپیوٹیشن برڈن. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اپنے لیے اور آسانی بنائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ایزی ہو جائے گا. جسٹ کیلکولیشن ہے، لیکن بیسک کنسیپٹس آلویز ریکوائرڈ ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہوں. یہ ہمارے پاس ابھی 2 ایکویشنز ہیں. ابھی دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہ 0 کر دی ہے اور یہ 0 کر دی. شاید میں نے آگے یہ نارملی کیا ہوتا ہے. نارملی میں اس کو آپ کو ذرا تھوڑا سا اس میں سمجھاتا ہوں، یہ تھوڑا سا ایزی ہوگا. نارمل پاور سسٹم کے آپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وولٹیج چینج کی، وولٹیج سے یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی کیا بتا رہا ہے آپ کو، یہ مطلب آنا چاہیے. چینج ان دا P2 ود رسپیکٹ ٹو دا چینج ان دا V2 مینس کہ اگر آپ V2 کو چینج کریں کہ P2 میں کتنی چینج آ رہی ہے، اس کا ریٹ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ریٹ آف چینج آف P2 ہے ود رسپیکٹ ٹو V2. تو V2 P کے ساتھ، اور اسی طرح دوسرا جو ویکٹر ہے ڈیلٹا Q کے ساتھ. اگر آپ کو بیسک بیک گراؤنڈ آتا ہے سنکرونس مشین کا تو یو شوڈ نو کہ ہمارے پاس 2 کنٹرول ہوتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے گورنر جس کو میں GOV لکھتا ہوں، اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس ایکسائٹیشن جو فیلڈ ہوتی ہے آپ کے پاس DC فیلڈ ایٹ دا روٹر. گورنر بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ گورنر یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ان پٹ والو ہوتا ہے فیول کا، ہائیڈل میں واٹر کا،
उसको जो है वो ओपन और क्लोज करता है। विद ओपनिंग मोर वाल्व जो है वो ओपनिंग ज़्यादा करें आप, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। देन अब होता क्या है कि जब आपके पास सिस्टम जो है वो नॉर्मली इन्फिनिटी बस के साथ लगेगा, लेट्स सपोज ये कोई एक इन्फिनिटी बस है और मैं उसके साथ एक जनरेटर डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। अब इस जनरेटर में दो कंट्रोल है, गवर्नर एंड ये आपके पास इन्फिनिटी बस है। इन्फिनिटी बस का बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो कि जिसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, और वो कोई भी अमाउंट की पावर P और Q जो है वो ले सकता है और डिलीवर भी कर सकते हैं। ये बेसिक इन्फिनिटी बस होती है। जैसे पाकिस्तान का पूरे सिस्टम को हम लें तो हम उसमें एक इन्फिनिटी बस कंसिडर करेंगे, वो हमारा रेफरेंस बन जाता है। सो नाउ व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग द गवर्नर सेट पॉइंट, तो गवर्नर सेट पॉइंट इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। अब फ्रीक्वेंसी को जब चेंज करता है तो ये सिंक्रोनाइज हुआ है इसके साथ, और सिंक्रोनाइज में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है दोनों सिस्टम्स की, तो तब वो सिंक्रोनाइज होता है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ सिंक्रोनाइज होगी एक दफ़ा, लेट्स सपोज 50 हर्ट्ज का सिस्टम है तो 50 हर्ट्ज आपने दे दी। अब अगर आप गवर्नर इसका थोड़ा सा वाल्व ओपनिंग ज़्यादा करें, ठीक है, पावर का फ्लो या फ्यूल का फ्लो ज़्यादा करें इनपुट, तो ये जनरेटर को अपनी तरफ से ट्राई करेगा कि स्पीड अप हो। और आपको पता है कि वो फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू 120 F डिवाइडेड। अब इसमें हमारे पास काम कर स्पीड, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने की कोशिश फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बट तो इन्फिनिटी बस के साथ जब कनेक्टेड हो तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं। अब अपना वो गुस्सा जो है वो दैट द वाल्व ओपनिंग वो ये करेगा कि ये जो पावर फ्लो है यहाँ से इन्फिनिटी बस की तरफ P, ये इंक्रीज कर जाएगा, जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास रोटर पे एक्साइटेशन होती है, और एक्साइटेशन का रिलेशन यहाँ पे जो है वो Q के साथ ही है। ये जो फिगर है, लेट्स सपोज एक ये ले लेते हैं Q। अब आपके पास दो और चीजें मैं बताता हूँ। दूसरी चीज, अब आपके पास है वोल्टेज एक्साइटेशन। जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो दैट मीन्स कि आप जो है यहाँ पे इसके जो करंट है, इसका फ्लक्स है, उसको ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और आपको पता है कि जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज जनरेट होती है, जो क्या कहते हैं, इंटरनल वोल्टेज जनरेटेड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्लक्स, फेराडेज लॉ। तो फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स कि अब आपके पास वोल्टेज भी जो है वो ज्यादा होगी आउटपुट पे। तो वो वोल्टेज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप इन्फिनिटी बस के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये इफेक्ट ये डालता है कि ये वोल्टेज को ज्यादा होने नहीं देता। जिस तरह फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी बस ने ज्यादा नहीं होने दिया, इसी तरह इस वोल्टेज ने भी इन्फिनिटी बस ने वोल्टेज को ज्यादा होने नहीं दिया। तो दैट इन टर्न चेंज द रिएक्टिव पावर शेयर विद द इन्फिनिटी बस। जो आप रिएक्टिव पावर शेयर करते हैं इन्फिनिटी बस के साथ, दैट पावर इज चेंज। तो दो फैक्टर्स हैं, स्पीड गवर्नर दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, और दैट मीन्स कि आप इसका पावर एंगल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पावर एंगल। ये दो फैक्टर आपके पास आ गए। तो पावर एंगल के साथ ज्यादा इफेक्ट जो है वो Q पे नहीं होता, और वोल्टेज के साथ एक्साइटेशन के साथ चेंज करें तो वो ज्यादा इफेक्ट जो है वो P पे नहीं होता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, और रेट ऑफ एक्टिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, नॉर्मली ये आपके पास कोई चेंज नहीं होती। तो ये इन दो मैट्रिसेस को, इन दो टर्म्स जो है वो सब मैट्रिसेस को, J2 को और J3 को हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपके पास जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ये एंट्रीज जो हैं वो आपके पास खत्म हो जाती हैं। तो दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम, द चेंज इन द वोल्टेज एंगल एट द बस primarily affects the real power T in the transmission line, and reactive power Q
is unaffected. On the other hand, change in the voltage magnitude affects the reactive power Q in the transmission line and active power is unaffected. So दो factors जिनको अभी हम study कर रहे हैं, तो दो factors change in the P with respect to voltage, ये जो है 0 और change in the Q with respect to phase angle of the voltage that approaches to 0. तो अब आपके पास, मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा जाता हूँ, ये जो दो एंट्री 0 0 की, अब आपके पास जो हैं वो दो आपके पास एंट्रीज जो हैं वो सब मैट्रिसेस J2 एंड J3 दैट आर 0. तो आपके पास रह गया J1 एंड J2. अब इस इक्वेशन को 6.68 इज द अप्रॉक्सीमेट वर्जन ऑफ द न्यूटन-रॉफसन मेथड, जिसमें हमने अपनी अप्रॉक्सीमेट, ये बिल्कुल ना कंसिडर करें कि चेंज इन द वोल्टेज जो है वो पी को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इतना करता है कि जो अगर हम उसको 0 भी एज्यूम करें तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा पावर फ्लो का, उसको वो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक हो गया. तो अब इन दो मैट्रिसेस को आप नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो देख लें कि डेल्टा पी इज इक्वल टू J1 इंटू डेल्टा एंगल, J1 इंटू डेल्टा चेंज इन द एंगल प्लस 0 इंटू डेल्टा वी. तो ये आपके पास 6.69 आ गई. इसी तरह चेंज इन द Q इज इक्वल टू 0 इंटू चेंज इन द एंगल प्लस J4 इंटू चेंज इन द वोल्टेज. तो डेल्टा जो चेंज इन द एंगल इंटू 0 0 टर्म आ गई, तो J4 इंटू वी. तो अब आपके पास एक जो इक्वेशन है वो डिकपल होगी. ठीक है. इस सिस्टम में पहले आपके पास ये डिकपल नहीं थी कि इसका लिंक P3 जो है वो या इसके दोनों का हर एक इक्वेशन में P2 पार्शियल V2 आ रहा था आपके पास. ठीक है. इसी तरह इस इक्वेशन में ये आ रहा था P3 V2, इसी में ये इक्वेशन में आ रहा था P4 V4, बाकी भी इसी तरह आ रहे थे. तो अब हमने क्या किया कि हमने इन दो इक्वेशंस को डिकपल कर दिया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव अप्रॉक्सीमेटेड न्यूटन-रॉफसन मेथड बाय टू डिकपल्ड इक्वेशंस. स्टिल कपलिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कपलिंग जो है वो अब आपस में इनका लिंक जो है वो कमजोर हो गया. ठीक है. अब ये इक्वेशन अगर आपके पास, लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को ले लें जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप ये दो डिकपल लिखेंगे तो अब आपके पास ये दो डिकपल्स आ गई. पहले आपको 6/6 का मैट्रिक्स उसका इन्वर्स लेना था, तो इवन कि इट इज नॉट पॉसिबल विद द सिंपल जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं आपके पास, बट नाउ यू कैन सॉल्व इट विद सिंपल कैलकुलेटर सो दैट इट्स एज इट्स कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी हैज रिड्यूस्ड. अब ये आपके पास 3/3 का सिस्टम बन जाएगा. 3/1 का वेक्टर है ये, और ये 3/1 का वेक्टर है. इसी तरह दूसरा भी. तो अब आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो अब ये देख सकते हैं कि एंगल की जो करेक्शन है, वो दैट वी आर कैलकुलेटिंग थ्रू द P विद रिस्पेक्ट टू P के साथ और एंगल के साथ हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, और V अब इसमें और Q गायब हो गए. जबकि अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें Q में जो है जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड की करेक्शन है, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड यूजिंग ओनली Q2 एंड V और Q जो हैं वो यूज हो रहे हैं. यहाँ पे P's और डेल्टाज यूज हो रहे हैं. ये आपने जो है वो नया डेल्टा की जो करेक्शन वैल्यू है वो आपके कंप्यूट कर सकते हैं. ये दोनों इक्वेशन स्टिल जो है वो इंटर डिपेंडेंट हैं. बोथ इक्वेशन ये जो मैंने लिखी हैं बिल्कुल एक एग्जांपल के साथ 4 बस सिस्टम की जनरलाइज फॉर्म में. तो अब ये जो दो इक्वेशन हैं 6.69 एंड 6.60, ये आपके पास टू डिकपल्ड इक्वेशन है. तो अब आपको लेस टाइम जो है वो चाहिए होगा इनको सॉल्व करने के लिए एज कंपेयर टू द न्यूटन-रॉफसन मेथड जो एक्चुअल फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे थे. इसको हम फर्दर मोर considerable simplification can be made in 6.69 and 6.60 to eliminate for computing J1 and J4 during each iteration. अब क्या है कि J1 अभी भी जो है, जब आप लेट्स सपोज 6.69 को देखें तो यहाँ पे अगर आप
चेंज इन द डेल्टा जो है वो कंप्यूट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन द, सॉरी नहीं, पहले जो है वो जैकोबियन J1 होगा, इट्स इनवर्स, और देन मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है वो चेंज इन द P का वेक्टर होगा। ठीक है जी, पावर रेजिडुअल या पावर मिसमैचेस जिसको कहते हैं। इसी तरह अगर आप चेंज इन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो देन यू विल यूज J4 minus inverse into delta Q. Still you need computation of, although it is much simplified as compared to 6 by 6, now we are having only 3 by 3. So, but still you need computation of Jacobian 3 by 3 using partial derivatives of P with respect to delta, and similarly J4 computing the partial derivative of all Q's with respect to voltages, each voltage. So still you need a computation of Jacobian in one step, then in second step you need Jacobian inverse. तो अभी भी हर आइट्रेशन में आपको ये चीजें दोबारा जो हैं वो कंप्यूट करनी पड़ रही हैं। तो स्टिल इक्वेशन इज still difficult. So with further simplifications, they are able to construct a Jacobian like matrix at the first, we can say at the data collection and estimation state, and use that matrix throughout the iterations. बार बार हमें उसका Jacobian और inverse और वो सारी हर उस पे iteration पे compute न करना पड़े। ठीक है जी। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। अब आप यहाँ से डेल्टाज निकालेंगे, ठीक है। तो जब आप लेट्स सपोज डेल्टा पार्शियल Q2 बाई पार्शियल V2 निकालेंगे तो उसमें आपके पास, मेरे पास यहाँ पे कोई ठहरे एक मिनट में देखता हूँ इक्वेशन कहीं पे हो, तो अगर इक्वेशन होती है तो फिर मैं आपको यहाँ लेके देता हूँ। J2 तो 0 हो गया, लेट्स सपोज J3 J4 जो है वो हमारे पास मौजूद है। मैं इसकी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ ये इक्वेशन में यहाँ, अब जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ना, अब आपने जब लेट्स सपोज पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसकी एग्जांपल अभी नेक्स्ट इस साइकिल में करते हैं। नाउ यू हैव सॉल्व दिस डेल्टा Q2 V2, तो ये आपने सॉल्व करना है। तो अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, डेल्टास चाहिए ना। अपडेटेड वैल्यू हमेशा ज़हन में रखें आप, अपडेटेड, तो वो यहाँ से आई होंगी, यहाँ से आपने कंप्यूट की होंगी ये। तो इसकी कंप्यूटेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट फिर भी है। अच्छा, अब आपने वीज कैलकुलेट कर ली। तो अब मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लेके आता हूँ। J1 वाली, तो मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज में थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ ताकि दोनों जो हैं वो यहाँ पे आ जाए। नजर आ रहा है आपको कि नहीं? ये मैं दो एलिमेंट्स डायगोनल और ऑफ डायगोनल दोनों ले आया हूँ यहाँ पे। अब आप देखें कि अब आप जो है वो P विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्शियल डेल जैकोबियन इस J1 का, J1 और दिस इज J4। तो J1 में जब आप करेंगे कंप्यूटेशन तो यू स्टिल नीड वोल्टेजेस, और ठीक है, इनकी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। तो अब ये वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करके। तो यहाँ से जो अपडेटेड वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे यूज होंगी, तो यहाँ से जो डेल्टाज आएंगे वो यहाँ पे यूज होंगे।
تو اسٹل جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ لنک ہے اور اسی لنک کو جو ہے وہ ہم نے ابھی اور جو ہے وہ اس لنک کو جو ہے وہ سمپلیفائی کرنا ہے. We were discussing that although we have decoupled this 6 by 6 Jacobian into 3 by 3 two sub-Jacobians J1 and J4, and with using two conditions that the voltage change does not affect the active power flow, and the phase angle of the bus voltage has no effect on the reactive power of the reactive power flow. So using these two assumptions, we have decoupled this into two 3 by 3 Jacobians, and alternately we have two subsystems. یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ٹھہریں یہ ہمارے پاس دو سب سسٹم آ گئے ہیں. ان کو ہم الٹرنیٹلی سالو کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سولوشن کی طرف جاتے ہیں. But still there is interconnection between these two equations, so we will have to simplify it. وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. نارملی ابھی آپ نے کیلکولیشنز کر لی ہیں, ابھی آپ نے ایگزامپلز میں دیکھا بھی ہوگا کہ ود انیشیل اسٹیمیٹ دو چیزیں ہم نے اسٹیمیٹ کی, 1 اینگل 0, یہ ہمارا نارمل. تو آپ نے دیکھا کہ اینگل جو ہے وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی دیٹ واز ایکول ٹو 0 کے بہت قریب تھا. تو اگر ہم اس کا دو بسز کا ڈفرینس لیں تو دیٹ از ویری مچ ایکول ٹو 0. ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل میں دیکھتا ہوں جو ہم نے لاسٹ سالو کیا تھا, اس میں مجھے ایک جگہ پہ کہیں دو مل گئے ہیں. تاکہ آپ کو آسانی ہو اس میں. کنسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے. یہ اگر آپ دیکھیں, یہ میں نے اگرچہ میں نے پہلی آئٹریشن کے بعد اٹھا لیا ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ان دونوں کا ڈفرینس جو ہے وہ کیا آ رہا ہے, 0.0039. دیکھیں اسمالر ویلیوز ہوتی ہیں نارملی, اور ان کا کاز لیں تو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے. اور سمپل انڈرسٹینڈنگ کے لیے cos of 0 is equal to 1 اور sin of 0 is equal to 0. تو sin of 0 is equal to 0 means کہ جو اینگل اسمالر ڈفرینس ہے ان کے درمیان اپروکسیمیٹلی اسی کے برابر ہے. تو یہ ہم یہ دو اپروکسیمیشن لکھ سکتے ہیں. نمبر 2, آپ کے پاس جو لائن کی دو آپشنز ہیں, آپ کے پاس لائن کی سسیپٹنس اور لائن کی کنڈکٹنس. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس دیکھیں سیریز لائن میں آپ پڑھتے ہیں R plus JX, یہ پڑھتے ہیں. دین وی کنورٹ انٹو G minus JB. تو یہ جو B کی ویلیو ہوتی ہے, یہ B کی ویلیو یہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے G سے. یہ نارملی اگر آپ ابھی تو ہم نے ایگزامپل دونوں کے ساتھ کی ہیں, لیٹس سپوز ہم نے 10 minus J30 اس طرح لکھ دیا ہے, لیکن نارمل پریکٹس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جب میں نے آپ کو ایگزامپل سمجھائی تھی اس کی پاور سسٹم کی جس میں ہم نے وائی باس تھرو انسپیکشن کنسٹرکٹ کی تھی, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جسٹ بی کے ساتھ ہی ساری کیلکولیشنز کی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. تو آپ اس کو نارملی اس کو بھی جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بات ہوگی. نمبر 2, دین وین دس ملٹیپلائز ود دا سائن آف اینگل ڈفرینس, اور یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے بی ود دا کاز آف دا اینگل ڈفرینس, دین بی آئی جے کاز ڈفرینس اور از ویری مچ گریٹر دین جی آئی جے سائن آف ڈفرینس اینگل ڈفرینس. تو یہ ایک آپ کے پاس دوسری جو ہے وہ اپروکسیمیشن جو ہم آگے یوز کریں گے وہ ہوگی. نمبر 3,
इन ए टिपिकल पावर सिस्टम क्यू आई जो होता है, क्यू आई वो वेरी मच स्मॉलर देन द वी आई स्क्वायर वी आई आई। ये जो है ये आपके पास ये जो पावर है ये भी रिएक्टिव पावर है। जैसे अगर आपको याद हो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के पैटर्न पे लिखी हुई है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं डीसी में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये फार्मूले याद होंगे अभी, आई स्क्वायर आर या इज इक्वल टू वी आई, ये तीन फॉर्म्स हैं एक्टिव पावर की जब आप डीसी के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी सिमिलर इसी पैटर्न पे लिखा हुआ है, आर जो है 1/r इज 1/b या जी जो भी उसमें लिखते हैं। तो क्योंकि हम इसमें जब वो दोनों कंसिडर करेंगे तो इसमें जी प्लस जे भी आएगा, तो जो आपके पास क्यू है दैट इज वोल्टेज स्क्वायर ओवर सप्लाई बाय, तो ये आपके पास ये पावर का एक फार्मूला बनता है, ठीक है। और ये रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर किसी भी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट पावर होती है, और ये रिएक्टिव पावर सिस्टम में नॉर्मली जो किसी भी बस पे वो या तो डिलीवर कर रही है वो बस या इंजेक्ट हो रही है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, पावर रिसीव भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। ये क्यू आई जो है ये सिस्टम की पावर है नॉर्मल ऑपरेशन में। जबकि ये जो पावर है ये शॉर्ट सर्किट की पावर, जो सिस्टम की रेटेड पावर शॉर्ट सर्किट की होती है, ये वो रेटिंग है। तो नॉर्मली किसी भी सिस्टम में ये वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू क्यू आई, ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है पावर की एज कंपेयर टू द क्यू आई। अब आपके पास नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपके पास एजम्पशंस आ गई। अब ये तीन अप्रॉक्सीमेशंस अब हम सिंप्लीफाई यूज करेंगे, हम जैकोबियंस को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। और जैकोबियन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द ऑल द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द ईच स्टेट वेरिएबल। ये इनसे बनता है, देन हमने उनको डिकपल किया, तो देन इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ partial derivative of p's with respect to deltas, and number 2 is partial derivative of q's with respect to v's। ये जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये दोनों का, अभी हम इनको और जो है वो देखते हैं आगे। ओके, तो अभी हम इन अप्रॉक्सीमेशंस को यूज करेंगे इन जैकोबियन एलिमेंट्स में। तो ये जो है वो हम कैसे जो है वो यूज करेंगे, ये अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था 6.55 जैकोबियन एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, J1 अभी हमें जरूरत ही नहीं है। अब अगर आपको मैं एक एलिमेंट J1 का बताता हूँ, ये जो हमने लास्ट भी डिराइव किया था वो मैंने आपको इसलिए स्लाइड्स डाल दी हैं, दोबारा आप रिवाइज कर सकें, इसको देख सकें। किसी भी बस पे पावर जनरलाइज फॉर्म में ये 6.52 इक्वेशन। अब मैं P2 के लिए जस्ट लिखता हूँ, जस्ट P2 के लिए, तो समेशन को ओपन करके मैंने इसको ये फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख लिया दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया कि यहाँ पे देखें कॉज ऑफ बस नंबर 2 व्हेन I इज इक्वल टू J, I भी 2 है और J भी 2 है, ठीक है। तो अब आपने इसको लिखा θ2 डेल्टा 2 और डेल्टा 2, ये दोनों माइनस जीरो आ गया, कॉज ऑफ θ2 रह गया और वी स्क्वायर, वो इक्वेशन मैंने इसको जस्ट यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब इसमें इन दोनों को फिर मैंने समेशन में डाल दिया है जस्ट आपको जर्नलाइज समझाने के लिए, और उसमें से इसको मैंने अलहदा कर दिया। तो अब समेशन में J इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे देखें J इज इक्वल टू 1 है, पहली वाली सबसे टॉप वाली इक्वेशन में J इज इक्वल टू 1 इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे इस जो समेशन है J इज नॉट इक्वल टू 1 ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। ये मैं NR मेथड जो है वो आपको दोबारा रिवाइज थोड़ा सा वो करवा रहा हूँ, ताकि आप जब इन एलिमेंट्स पे ये रूल्स जो अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ये थोड़ी गलती है, यहाँ पे पार्शियल P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2 है और पार्शियल P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3 है, ये हमने कंप्यूट कर लिया एलिमेंट। ये हमने एक जर्नल सी एग्जाम वो एक एलिमेंट के लिए हमने किया था, ठीक है। अब
पार्शियल पी आई, ये जो इक्वेशन है, ये इसको मैं लेके आगे चल रहा हूँ। ये पार्शियल पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, इससे मैंने जर्नलाइज, ये दोनों जर्नलाइज इक्वेशन लिखी कि विद रिस्पेक्ट टू आई इज इक्वल टू जे और जे इज नॉट इक्वल टू आई, इन दोनों के हिसाब से मैंने ये लिख दिया। ठीक है जी। तो अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे कोट करता हूँ। पार्शियल पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपके पास, और यहाँ पे इसने माइनस साइन यहाँ पे, ठीक, ये है जे। अब डिफरेंस देखें, मैं इसको ठहरें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। अच्छा, मैंने ये लिखी हुई है नीचे, ये इक्वेशन लिखी हुई है, देखें। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, 6.55 जो मेंशन है और जो टॉप पे अभी इक्वेशन लिखी हुई। ठीक है जी। अब कैसे कंपेयर करते हैं आप? अब ये देखें, समेशन में j इज इक्वल टू 1 टू n है, और इसमें j इज नॉट इक्वल टू 1 है। j इज इक्वल टू, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, j इज इक्वल टू 1 टू n, बट इस कंडीशन के साथ कि j की वैल्यू और i की वैल्यू बराबर आपस में इक्वल नहीं है। तो फिर उस इक्वेशन में ये जब आप इंक्लूड करेंगे तो फिर ये जो टर्म, ये वाली टर्म है, ये अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये भी इसके साथ आनी चाहिए। तो अब इसमें वो टर्म इंक्लूड कर दी है और यहाँ पे उसी को माइनस भी कर दिए, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। फॉर एग्जांपल मैं इससे लिखता हूँ x, सॉरी, j इज इक्वल टू 1 टू n, बट j इज नॉट इक्वल टू i। अब इसको कैसे लिखेंगे? और कोई वेरिएबल दे देते हैं वी आई इंटू वी जे। ओके, अब इसको ओपन करें तो ये आपके पास क्या आएगा, वी आई, सॉरी, 2 के लिए लिखते हैं v2 v1 प्लस, मैं बाकी टर्म्स नहीं लिखता, v2 इंटू वी जे। तो j इज नॉट इक्वल टू आई, तो 2 नहीं होगा, तो 3 पे चले जाएंगे, प्लस v2 v4, चलते जाएंगे जो भी आपकी नंबर ऑफ बसेज हैं उसके साथ। अब अगर मैं इसमें शामिल करना चाहूँ v2 v1 प्लस v2 इंटू v2 प्लस v2 v3 प्लस v2 v4 v2 v2, इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? ये जो पार्ट है पहले वाला, दिस फर्स्ट पार्ट, अब अगर मैं इसको इंक्लूड करूं समेशन में तो मैं कैसे लिखूंगा? समेशन वी आई वी जे, जे इज इक्वल टू 1 टू n, ये लिखूंगा, और उसके साथ माइनस v2 v2, ये लिख दूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा इसकी शेप चेंज की है और कुछ भी नहीं। ठीक होगी बात? ओके, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर नाउ, अगर आप ध्यान के साथ देखें तो ये इक्वेशन 6.53 में यहाँ पे दोबारा कोट कर रहा हूँ, 6.53, और उसमें Q की वैल्यू देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? J इज इक्वल टू 1 टू n समेशन वी आई वी जे वाई आई जे साइन ऑफ दिस वन। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखी अब बन गई है ये साइन के साथ। ठीक है, दैट इज Q, और चूंकि वहां पे माइनस साइन भी है तो माइनस साइन के साथ। सो अब मैं इसकी जगह पे जस्ट यहाँ पे सिर्फ माइनस Q लिख रहा हूँ और बाकी टर्म, ये आखिरी वाली टर्म ये यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू y मैग्नीट्यूड
कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना, कॉज ऑफ थीटा, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, इंटू वाई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। ओके, ये आपके पास y की वैल्यू, तो ये क्या है g और ये क्या है jb, सॉरी ऊपर jb लिखना था, ये g प्लस jb, तो b किसके बराबर है y साइन थीटा के, तो ये y साइन थीटा है, इसको मैं b लिख लेता हूं जस्ट। बात होगी क्लियर? अब अगर आप देखें तो ये हमने प्रीवियसली कहा था कि b की जो वैल्यू है BII दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन QII, जो उसकी लाइन की ससेप्टेंस होती है वो कंडक्टेंस से बहुत बड़ी होती है। तो नाउ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू बहुत स्मॉलर है, देन वी कैन सिंपली राइट इट VI स्क्वायर BII, सिंपल यहां पे हम लिख सकते हैं VI स्क्वायर BII, ये वैल्यू ग्रेटर होती है बहुत ज्यादा और ये वैल्यू स्मॉलर होती है। तो ये इक्वेशन 6.71 आपको ये बताती है। ध्यान करें, चले मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको मैं यहां करता हूं सिंपल 6.71। अब आप ध्यान के साथ देखें कि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज की है और इस डायगोनल एलिमेंट को, जो डायगोनल एलिमेंट ऑफ J1 है, उसको मैंने रिड्यूस कर लिया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये ठीक है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब भी स्टिल इसमें एक एलिमेंट है जो हर स्टेट पे जो है वो हर आइटरेशन में वेरी करेगा, ये VI, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन स्टिल बट ये जो है ये BII, ये आपके पास ये एलिमेंट y साइन थीटा IJ, ये भी पूरा एलिमेंट है और ये आपके पास हर दफ़ा जो चेंज हो रहा था ये अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ रहा है और उसके साथ VI है, इसको भी हम आगे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को ये आपने कर दिया, इसको क्या नाम है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट की तरफ। ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अब वही इक्वेशन जो है ये देखें 6.55 ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और 6.56, ये 6.56 आपको बताता है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इसको हमने ये लिख दिया J इज नॉट इक्वल टू 1। अब आपको पता है हमने लास्ट भी देखा कि हमने एक एजम्पशन की थी कि थीटा J माइनस थीटा I, दो बसेस के दरमियान जो एंगल डिफरेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये जो इसमें फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ y साइन थीटा, तो y साइन थीटा इज अगेन BIJ, ठीक है। तो वी हैव रिड्यूस दिस 6.56 टू इक्वेशन 6.72 ऑफ डायगोनल एलिमेंट, हमने भी इसको रिप्लेस कर दिया एक स्मॉलर वैल्यू। इसी तरह J4 के डायगोनल और ऑफ डायगोनल भी अब आपको इसी तरह जो है ये इक्वेशन देखें डेल QI बाई डेल VI, ये भी उसी फॉर्म में आ गया। तीनों की फॉर्म्स नोट करते जाएं। फोर्थ वन इज दिस वन, ये देखिए, तो आपके पास अभी जो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं दैट इज V मल्टीप्लाई बाय B, V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B, ये सारे एलिमेंट इस फॉर्म में आ गए हैं और अब आप जो है इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन हम और करते हैं। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए ये जो इक्वेशन बनेगी इससे फर्स्ट रो से, वो इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, V2 B22 into delta V2 change in the V2 माइनस V2 V3 B23 into delta V3 माइनस V2 V4 B24 delta V4, yeah, multiply is equal to Q2, ठीक है। अब आप सब पूरी इक्वेशन को V2 से डिवाइड करें, पूरी इक्वेशन को V2 से डिवाइड करें, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई। नॉर्मली अभी हमने एक और बात की थी
کہ جو وولٹیج میگنیچیوڈ ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 1. اب سارے ویز کو ہم اگر 1 کر دیں تو یہ تو اکویشن بالکل اس میں کوئی اپڈیشن والی چیز ہی نہیں رہے گی. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو وولٹیجز ہیں ان کو ہم 1 ایزیوم کر لیتے ہیں اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 1. دس از 1 اور دس از 1. یہ جس طرح میں نے اگزامپل آپ کے ساتھ وہی 4 بس سسٹم کی چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے, جرنلائز فارم میں مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر ہم 1 ایزیوم کریں تو پھر آپ کے پاس کیا ایکویشن بنتی ہے, یہ دیکھیں یہ ایکویشن کیا بنے گی, B22 انٹو ڈیلٹا V2 B23 انٹو ڈیلٹا V3. میں لکھ دیتا ہوں B22 انٹو ڈیلٹا V2. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھ لیں یہ V2 ختم ہو جائے گا, یہ V2 ختم ہو جائے گا, یہ V2 ختم ہو جائے گا, آپ کے پاس آ جائے گا آر اے کے ساتھ ڈیلٹا V2 V3 ڈیلٹا V4 از اکول ٹو ڈیلٹا Q4 ڈیوائڈ بائی V2. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے پاس یہ سارے یہ بھی دوسری سائڈ پہ چل رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. اب ایکویشن کی فارم دیکھیں, یہ بن جاتی ہے ایسے. یہ ایکویشن ہم نے کی ہے انٹو ڈیلٹا V2 ڈیلٹا V3 ڈیلٹا V4 یہ V2 کو ہمیں دوسری سائڈ پہ لیں. اسی طرح ایک دوسرے کو بھی ریڈیوس کر لیں گے. یہاں تک رکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ اس کو ان کی ایلیمنٹس کی کیلکولیشن کے ساتھ آئیں گے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور اپنے ہاتھ سے سالو کر لیں.